So in our last classes, we studied about perfect tenses, three perfect tenses: present perfect, past perfect, and then future perfect. So now we are going to revise it hurriedly, and then we will practice some of the sentences. The first thing that I would like all of you to keep in your mind, to register in your mind, to learn by heart is the verb. Third form of verb in present perfect tense, in past perfect tense, in future perfect. In three perfect tenses, we use third form of verb. The form of the verb will be third form. The form of the verb will be third form in three perfect tenses. That is the first point. And secondly, we studied about helping verb. First is verb. Second one is helping verb. So helping verbs are three helping verbs: has, have for present, had for past, will have, and shall have for future. So in this way, we are going to learn them by heart. Has, have, had, will have, shall have. Has, have, had, will have, shall have. Has, have, had, will have, shall have. In this way, you have to remember, you have to learn by heart all the three helping verbs, so that the rest of the people may also, the rest of the things you may also learn by yourself. And the third point was पहचान, recognition. First one is चुका है या कर लिया है, चुका था या कर लिया था, चुका होगा या कर लिया होगा. These are the three points of recognition where we have to recognize. So in perfect tenses, we have to learn by heart the three important points. Number one is verb. Number two is helping verb. Third one is पहचान, recognition. So हमें perfect tenses में तीन चीजों को याद रखना है. Number one, verb, form of verb, third form of verb. Number two पे क्या आ जाएगा? Helping verbs. Helping verbs हमारे पास कितने हैं? Has, have, had, will have, shall have. Three. Then recognition, पहचान. Third one is पहचान. चुका है या कर लिया है, चुका था या कर लिया था, चुका होगा या कर लिया होगा. So in this way, you are going Yes, to sir. learn these 3 points in perfect tenses. So in the last session, we completed these all exercises. It was also done in the session. Class activity 2, it was also done in the session. Now we are moving forward toward an important part. जब हम perfect tenses पढ़ रहे हैं, जब हम perfect tenses पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक स्पेशल चीज एक्स्ट्रा आती है. जब हम परफेक्ट टेंसेस पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या आता है? एक चीज, राइट डाउन विद यू, एक चीज हमारे पास एक्स्ट्रा आती है. क्या आती है? एक चीज हमारे पास Extra. राइट डाउन पास्ट परफेक्ट टेंस. राइट डाउन, एक पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे पास एक चीज एक्स्ट्रा आती है. तीन चीजें हमने नॉर्मल याद की हैं: वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स एंड रिकॉग्निशन, पहचान. नाउ एक चीज इसके अलावा एक्स्ट्रा इसमें, राइट डाउन पास्ट परफेक्ट टेंस. ऑल ऑफ योर राइटिंग, जस्ट रेज योर हैंड्स, हरी अप. If all of you are writing, just raise your hands. Very good, very good, very good. Very good. Two participants raise their hands. Okay, okay, very good. So past perfect. Write down this particular sentence on your notebooks. कि past perfect tense में जुमला दो हिस्सों में भी इस्तेमाल होता है. क्या लिखा है जी? क्या लिखा है जी? पास्ट परफेक्ट टेंस में जुमला दो हिस्सों में भी इस्तेमाल होता है. क्लियर यासिर? यस सर. अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें एक एक्स्ट्रा चीज हम इसमें याद करने जा रहे हैं. एक्स्ट्रा एडिशन होने वाला है इसके अंदर. ओके, वो एक्स्ट्रा एडिशन क्या है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर Yes, हम sir. समटाइम्स दो हिस्सों, दो पार्ट्स वाला जुमला यूज करते हैं. कितने पार्ट्स वाला जुमला यूज करते हैं?
Two parts. टू पार्ट्स। तो पहले हिस्से में क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट आएगा। पहले हिस्से में हम क्या लिखेंगे? Past perfect. Past perfect. ये याद करने वाली चीज है, ये समझने वाली चीज भी है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। पहले वाले में क्या आएगा? Past perfect. Past पास्ट perfect. परफेक्ट। एंड सेकंड वाले में क्या आएगा? Past indefinite. पास्ट इंडेफिनिट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। हम बात कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा नोट आज हम कर रहे हैं इसमें परफेक्ट टेंसेस में, उसमें क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस में सम टाइम दो हिस्सों वाला, एक जुमले के दो हिस्से होते हैं। एक जुमले के कितने हिस्से होते हैं? दो दो। Two parts. पहले वाले में हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। पहले वाले में क्या लगाते हैं? Past perfect. Past perfect. और दूसरे वाले में क्या लगाते हैं? Past indefinite. पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, Perfect past indefinite. पास्ट परफेक्ट, पास्ट Past इंडेफिनिट, indefinite. पास्ट परफेक्ट, अस्सलाम वालेकुम. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट। इस तरह याद करना है आपने। पहले में क्या आएगा? Past perfect. दूसरे में क्या आएगा? Past indefinite. पहले में क्या अस्सलाम आएगा? वालेकुम सर. वालेकुम सलाम। Past पढ़ लीजिए perfect. अभी साहब। पहले में क्या Past आएगा? Past perfect और दूसरे में past indefinite. Past indefinite. पहले में क्या आएगा? Past perfect. Past दूसरे में क्या आएगा? Past perfect. Past indefinite. पहले में क्या आएगा? Past perfect. Past perfect. दूसरे में क्या आएगा? Past indefinite. Definite. पहले में पास्ट परफेक्ट आएगा, दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट आएगा। सिंपल रूल इज पहले में पास्ट परफेक्ट आएगा, perfect. दूसरे में Past indefinite. Past indefinite. पास्ट इंडेफिनिट का क्या रूल है हमारे पास? सिंपल Past indefinite. सिंपल पास्ट Subject, the इंडेफिनिट। second form of verb plus verb. जी. वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? Second. Second form. वेरी गुड। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? Second form of verb. Second. पास्ट Second. इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? Second form of verb. Second. और पास्ट परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? पहले वाले में Third form of verb. Third. Third form of verb. वेरी गुड, वेरी गुड, Form of verb. वेरी गुड, Thank you, sir. अभी हम आगे प्रैक्टिस करते हैं। ओके Right, sir. Yes, sir. ओके। नंबर 1, सैलाब के आने से पहले ही लोग गांव छोड़ चुके थे। राइट डाउन, Okay. Yeah. राइट डाउन। सर टीवी किसी का चल रहा है, बंद करवा दीजिए, शोर बहुत हो रहा है। Sir, write down करना है? Okay. यस, मुनीजा सर सेंटेंस एक बार फिर बताएं. सर सेंटेंस एक दफा फिर बताएं. लिखा हुआ है ना? सैलाब दरवाजा के, बंद कर दीजिए। राइट डाउन, सैलाब के आने से पहले ही, सैलाब के आने से पहले ही लोग गांव छोड़ चुके थे। ये सामने आपके नजर भी आ रहा है। यस सर। सैलाब Yes, के sir. आने से पहले ही लोग गांव छोड़ चुके थे। Yes, sir. क्या लिखा हुआ है जी? सैलाब के आने से पहले ही लोग गांव छोड़ चुके थे. लिख लिया सारों ने। दो हिस्से हैं इसके। सैलाब के आने से पहले लोग गांव जी. छोड़ लोग चुके गांव थे। छोड़ चुके सैलाब के आने से जी. पहले ही लोग गांव छोड़ चुके थे। देखिए क्या लिखा हुआ है? पीपल Yes, sir. people People had had left left the village village before the before left the village before the flood come. came. Yeah. 1000 रुपए को. People had left People had left left the village. Left the लोग Left the गांव छोड़ village. चुके थे। पहले हिस्से में हम क्या लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट लिखेंगे। People had left the village. People Yeah. had yes left the village left the village before the flood before the flood came. came. People had left the village before the flood came. All of you have written. Yeah. Yes, sir. दूसरा सेंटेंस लिखें। पुलिस के पहुंचने से पहले ही
पुलिस चोर भाग के पहुंचने से पहले ही चोर भाग चुका था। पुलिस के पहुंचने से पहले ही चोर भाग चुका था। Yes, sir. पहले जी क्या होगा? चोर, जस्ट अ मिनट सर, एक मिनट Thief बस, had run. भाग चुका था। यस सर। चोर के सर thief have पुलिस के पुलिस के पहुंचने आने से पहले ही, पुलिस यस के सर, पहुंचने से पहले ही चोर भाग चुका था। राइट डाउन। चुका था। यस सर। पुलिस के पहुंचने से पहले ही चोर भाग चुका था। ऑल ऑफ यू हैव रिटन। यस yes sir पुलिस के Yes, sir. पहुंचने से पहले ही चोर भाग चुका था। पहले वाले में हम क्या यूज करेंगे? पास्ट पास्ट परफेक्ट। सिंपल, पास्ट या पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट, सॉरी, दूसरे या में क्या पास्ट यूज करेंगे? परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पहले में क्या यूज करेंगे? Past पास्ट indefinite. परफेक्ट Past एंड perfect. देन पास्ट दूसरे में क्या सिंपल। यूज करेंगे? पास्ट सिंपल। रूल आपको याद करना है, लर्न बाय हार्ट करना है। द thief यस had run away. The thief had रन अवे, run away before the police reached. यस The thief had run away before the police reached. पहले द में देखिए, थीफ हैड रन अवे, या बिफोर द thief- पुलिस रीच्ड, पुलिस द बिफोर द पुलिस रीच्ड। ये देखें, पहले में क्या आ गया? द thief had run away। यस, दूसरे में क्या आ गया? बिफोर द पुलिस Before रीच्ड। the police reached। पहले वाले में had और थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट है। दूसरे वाले में सिंपल सेकंड फॉर्म है, तो ये क्या है? सिंपल इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर? यस, Yes, ओके, राइट डाउन द थर्ड वन। सूरज तुलू होने से पहले ही, सूरज तुलू होने से पहले ही शिकारी जाल बिछा चुका था। सूरज के तुलू होने से पहले ही शिकारी जाल बिछा चुका था। जब मैं बोल रहा होता हूँ उस वक्त आपने अपने माइक को म्यूट कर देना है ताकि डिस्टॉर्शन ना हो, सिर्फ सुने। जब मैं कहूँ उस वक्त ओपन करना है। फिर सूरज तुलू होने से पहले ही शिकारी जाल बिछा चुका था। ऑल ऑफ यू रिटन, लिख लिया बच्चों ये उर्दू वाला? यस सर, ये जितने सेंटेंसेस Yes, मैं sir. आपको लिखवा रहा हूँ ये नोटबुक पे लिखने, उसके बाद यू हैव टू टेक द पिक्चर ऑफ ऑल दी सेंटेंसेस एंड देन यू हैव टू शेयर इन द ग्रुप, ओके? इन द ब्रेक, in the 5 minutes break, you have to share the picture of all these sentences which you are jotting down, writing down right now, okay? yes sir, Said, Now third one, सूरज तुलू होने से पहले ही शिकारी जाल बिछा चुका था। The hunter had spread his net. First sentence. his neck before the sun the hunter rose, had The spread hunter had his spread his net. ये net देखिए ये first one हो गया। before the sun rose, Before the sun rise होता है second form, first form होती है rise, second form क्या हो जाएगी? wrote, rose Rose। oh yes, rose, sorry sir, Clear? yes, yes sir, Yes, sir. hunter, Any question? the hunter No, sir. had, Okay. Now fourth one. जलजला आने से पहले ही तूफान छतों को उड़ा चुका था। okay, जलजला आने से पहले ही एक पार्ट हो गया, sir, तूफान छतों को उड़ा चुका था। जलजला आने तो Hmm. से पहले ही
क्या कर चुका था? छतों को उड़ा चुका था। तूफान छतों को उड़ा चुका था। लिख लिया बच्चों? यस सर। तो ये क्या होगा? द स्टॉर्म द हैड स्टॉर्म हैड blown away Mom had blown away away the to roof. The roof कर दे। before the earthquake. ओके। The storm had द blown away स्टॉर्म the हैड roof. ब्लोन अवे टू, या The blown away उड़ा storm, चुका था। had आ गया पहले वाले में। कौन सा? past perfect tense। second one, the यस earth came before the पास्ट earth, परफेक्ट। before the earthquake came, बिफोर द अर्थक्वेक before केम। the earthquake came. before the द earthquake. स्टॉर्म हैड ब्लो अवे द रूफ बिफोर द अर्थक्वेक केम। ओके। clear? यस सर। Okay, activity number 1. Now come to activity number 1 again. रीच के पहुंचने से पहले ही वो दरख्त पर चढ़ चुका था। लिखें जी। रीच के पहुंचने से पहले ही वो दरख्त पर चढ़ चुका था। लिखा है बच्चों? यस सर, जस्ट अ मिनट। क्या लिखा है जी? रीच के पहुंचने से पहले ही वो दरख्त पर चढ़ चुका था। यस सर। He had climbed up the tree. He had, वो दरख्त पर चढ़ चुका था। पास्ट परफेक्ट पहले आएगा। He had climbed up the tree. बिफोर द बेयर अराइव्ड। He Before had the climbed up the tree before the bear arrived. लिख लिया बच्चों? yes sir. Yes, sir. क्या लिखा है जी? He had He had climbed up the tree before the bear bear arrived. arrived. पहले वाले में पास्ट परफेक्ट है, दूसरे वाले में पास्ट इंडेफिनेट है। Past Past indefinite. पहले यस। वाले में पास्ट परफेक्ट है, दूसरे वाले में पास्ट Indefinite. इंडेफिनिट। इंडेफिनेट है। नंबर 2, इंस्पेक्टर के आने से पहले ही, इंस्पेक्टर के आने से पहले ही वो स्कूल से जा चुकी थी। क्या लिख रही है जी? इंस्पेक्टर के आने इंस्पेक्टर, से पहले ही वेरी गुड, वो वो स्कूल से स्कूल जा से चुकी जा चुकी थी। यस सर। She इंस्पेक्टर के आने से had पहले she had gone out of school. he had gone out of school He before had the gone impressions come। out of school School before before the inspector came। the inspector came. क्या है जी?
She had gone out of school. Past perfect. Before the inspector came. Past indefinite. Third one. मेहमानों के आने से पहले ही वो घर को सजा चुके थे. मेहमानों के आने से पहले ही मेहमानों के आने से पहले ही वो घर को सजा चुके थे. मेहमानों के आने से पहले ही वो घर को सजा चुके थे. क्या बनेगा इसका जी? They had decorated the house before the guest came. Yes, they had decorated the house या home before the guest arrived. guests arrived या came. बिल्कुल ठीक है. क्लियर? Yes, sir. आगे लिखें जी वो डॉक्टर लिखें जी डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था. ये बहुत ज्यादा सेंटेंस जो है वो दिया जाता है. डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था. इसका पास परफेक्ट सेकंड में आएगा. पास इंडेफिनिट. पास परफेक्ट पास इंडेफिनिट. पास परफेक्ट पास इंडेफिनिट. डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था. लिखें जी इसका खुद से लिख के बताएं क्या है. The patient had died before the doctor came. वेरी गुड वेरी गुड वेल डन. जी बच्चों क्या लिखा है? क्या लिखा है बच्चों? मेरे पहुंचने से पहले ही मरीज मर चुका था. आगे लिखें. पांचवा लिखें मेरे पहुंचने से पहले ही वो फल खरीद चुके थे. मेरे पहुंचने से पहले वो फल खरीद चुके मेरे थे. पहुंचने से पहले ही वो फल खरीद चुके थे. क्या आएगा इसमें? They had bought They had bought the Before I fruit read. before I reached there या out there. यहां तक बच्चों समझ आ गई है? yes sir. पास्ट इंडेफिनिट पास्ट जो परफेक्ट टेंस है उसके आगे से एक एक्स्ट्रा उसका पार्ट बनता है जिसके दो हिस्से होते हैं. पहले में पास्ट परफेक्ट आता है, दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट आता है. क्लियर? Yes sir, indefinite sir. में second form of verb use होती है. जो इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म और यूज होती है, पास्ट परफेक्ट में हैड और Third, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज had or होती है. yes sir. Okay, now what I'm gonna give you is the assignment that you have to write down by yourself. Okay? Yes sir. Okay, just wait. Yes sir.
ओके, अभी आप सेंटेंस लिखते जाएं। पहला सेंटेंस लिखें, होमवर्क के लिए पहला सेंटेंस लिखें। कप्तान के आने से पहले ही हम मैच खेल चुके थे। जल्दी से लिखें। कप्तान के, सर ये होमवर्क जी यस यस, 5 सेंटेंसेस दूंगा जो आपने घर से लिखने हैं। कप्तान के आने से पहले ही हम मैच खेल चुके थे। यस सर। कप्तान के आने से पहले ही हम मैच खेल चुके थे। यस सर। क्या लिखा है? कप्तान के आने से पहले हम पहले मैच जीत चुके थे। मैच खेल चुके खेल थे। चुके थे। दूसरा लिखें जी, प्रिंसिपल के आने से पहले ही क्लर्क खत भेज चुका था। क्या है? प्रिंसिपल के आने से पहले क्लर्क खत भेज चुका था। प्रिंसिपल के आने से पहले ही क्लर्क खत भेज चुका था। भेज चुका था। जी। क्लियर? यस सर। तीसरा लिखें इसका जी, सूरज निकलने से पहले ही, सूरज निकलने से पहले ही वो काम खत्म कर चुका था। सूरज निकलने से पहले ही वो काम खत्म कर चुका था। सारों के अभी आपने विद इन, यू हैव टू राइट डाउन ऑल दी सेंटेंसेस बाय योरसेल्फ। थर्ड क्या लिखा है जी? सूरज निकलने से पहले ही वो काम खत्म कर चुका था। वेरी गुड। अगला लिखें, 9th वन लिखें। लोगों के जी। पहुंचने से पहले ही, लोगों के पहुंचने से पहले ही, लोगों के पहुंचने से हंटर क्या कर चुका था? शिकारी शेर को पिंजरे में बंद कर चुका था। जी सर। लोगों के पहुंचने से पहले ही शिकारी शेर को पिंजरे में बंद कर चुका था। ये सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं आपको लिखे हुए? जी सर। ओके। लोगों के पहुंचने से पहले ही शिकारी शेर को पिंजरे में बंद कर चुका था। क्लियर? यस सर। लास्ट लिखें। खत पहुंचने से पहले ही, खत पहुंचने से पहले ही डाकिया डाकखाना बंद कर चुका था। खत पहुंचने से पहले ही डाकिया डाकखाना बंद कर चुका था। लिख लिया बच्चों सारों ने? यस सर। एनीवन हु हैज नॉट रिटन सो फार? सारे बच्चों ने 5 के 5 सेंटेंस लिख लिए? यस सर। मैं रिपीट करता हूं, जल्दी से देख ले एक दफा ताकि फिर हम नेक्स्ट क्लास में जाएं। पहला सेंटेंस आपका, कप्तान के आने से पहले ही हम मैच खेल चुके थे। क्लियर? यस सर। नंबर 2 है, प्रिंसिपल के आने से पहले ही क्लर्क खत भेज चुका था। क्लियर है? यस सर।
तीसरा क्या है जी? सूरज निकलने से पहले ही वो काम खत्म कर चुका था। सूरज निकलने से पहले ही वो काम खत्म कर चुका था। फोर्थ वन, था। लोगों के पहुंचने से पहले ही, लोगों के पहुंचने से पहले ही शिकारी शेर को पिंजरे में बंद कर चुका था। आखिरी क्या है हमारे पास? खत पहुंचने से खत पहले पहुंचने से ही पहले ही डाकिया डाकानिया क्या है? डाकिया डाखाना बंद कर चुका कर था। चुका था। हो गया यहाँ जी तक? सर। यस सर। Now I am going to finish up the class right now, and you have to rejoin after 5 minutes. Okay? सर एक बात पूछनी है जी जी पूछें, टाइम कम है, जल्दी सर। पूछें। अभी आपने जी सर आपने अभी इन 5 सेंटेंस से पहले जो लिखवाए थे सर वो तो नहीं लिखा होमवर्क में या सिर्फ ये 5 ही है? ये सिर्फ 5 ही लिखने, वो भी लिखवा करवा जो दिए आपको, दोबारा तो नहीं लिखने ना वो। जी सर। Okay? So just यस सर। we are going to rejoin after 5 minutes. Till then, bye bye. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़ सर।